वाह 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 assaulting traffic policemen and getting thrashed in turn is now viral. Undated video from Karnataka shows policemen ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं कि अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो बेंगलोर में आपने ये प्रॉब्लम अक्सर फेस करी होगी। जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो पता नहीं मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कनाडिगा हैं, आप तमिलियन हैं, आप आंध्राइड हैं या आप मलयाली हैं और आप नॉर्थ इंडियन हैं। बट द प्रॉब्लम हियर व्हाट आई फेस, सो द स्टोरी बिगिंस विद माय विजिट टू बेंगलोर। तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात है, पहली बार बेंगलोर आया था एंड आई गॉट ऑन फ्रॉम द बस एंड उसके बाद में जब मैंने ऑटो लिया तो ऑटो वाले से सिंपल सी बात बोली कि आई नीड टू गो टू दिस प्लेस। और वो जो जिस जगह मेरे को जाना था मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, बट दिस ऑटो वाला आस्क्ड फॉर मी 200 रुपीज। आई जस्ट आस्क्ड हिम कि कितना दूर है भाई, आप जहां मेरे को छोड़ना है। ही सेड ये यहाँ से सब दूर है काफी, बट ही डिड नॉट टोल्ड मी कि एग्जैक्टली कितना दूर है। He took a turn of that auto and within less than a half a kilometer he dropped me there and he asked for 200 rupees. I told him simple thing, I will give you 300 rupees, take this auto to the police station. So now his facial expressions are completely changed. Now this is what I am experiencing here in Bangalore. So अगर आप बेंगलोर में रहते हैं, if you are residing in Bangalore and आपको कम्यूट करना है अगर सिटी में विद इन द सिटी, so it's very much difficult to take every time your car, है ना। पार्किंग का इशू है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ट्रैफिक का इशू आता है, so we commute by auto. The problem here, what Bangalore people, Bangalore government or maybe the authorities, especially the traffic authorities, they can learn this from the Mumbai. Right, so what they can learn from Mumbai, I lived in Mumbai for 6 years. So Mumbai mein you will never face such problem and the issues. Now why that Bangalore auto walas are different as compared to the Mumbai auto walas? Because one difference is that the authorities are there. There is some traffic rules are there and there is a traffic department who is functioning very good. So अगर आप मुंबई में बॉम्बे कभी जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो आपको कभी कोई ऑटो वाला 1 रुपया आपसे एक्स्ट्रा नहीं मांगता। सबके ऑटोज में आपको मीटर लगे हुए मिलेंगे। दे नेवर इवन थॉट ऑफ टेकिंग 1 रुपीज एक्स्ट्रा। और जितना आपके मीटर में बनता है उतना आपको देना होता है। और आई हैव नॉट सीन एनी टाइम कि आपको दिन में हो, रात में हो, आप किसी भी स्टेट से हो। इसीलिए इन मुंबई द वुमेन्स आर द मोस्ट सेफेस्ट फॉर द नाइट कम्यूटिंग और द डे कम्यूटिंग। वहां किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अभी मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ बेंगलोर वाले लोग क्यों नहीं समझते हैं इस चीज को। वाई दिस ऑटो वालाज आर ऑलवेज इन द माइंडसेट ऑफ चीटिंग द पीपल, है ना। तो ये माइंडसेट पता नहीं क्यों है। और I am seeing this not only with me. Go and ask to the auto people. Yeah, when we go and usually ask for 30 rupees charge, they ask 300 rupees. So in here, these guys are good to us. We don't mind. Why are they? Why first of all, why have they made the meter for? It is to do justice for both the people, even for the person who is driving it and the person as a passenger who is going to travel in it. So when they are doing justice by working on the meter, we don't mind paying with our happiness 10-20 rupees extra. But seeing the time situation, they also demand like 3 times, 4 times more, which is not something we would like to prefer. That's why people prefer going by Uber, Ola, because there's one amount which is mentioned there. It will hardly cost 50 rupees. Chalo, if you want to pay 1.5, fine. They are also doing night shift, double meter, no problem. 50 ka 100 is fine. 50 का 200, 250, 300। ये जो प्रॉब्लम बेंगलोर में लोग फेस करते हैं, मैं बहुत कई बार देखता हूँ कि किसी लेडीज के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। और कभी भी किसी भी, अगर मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं तो कार में आपको कट मार के जाएंगे और उल्टा, मतलब उनकी गलती होगी और उल्टा आपके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज व्हाट विच इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग हियर इन बेंगलोर। और बेंगलोर के ऑटो वालास को ये चीज सुधारनी पड़ेगी। आई डू नॉट नो अगर ये वीडियो कोई यहाँ पर कोई पुलिस अथॉरिटी या ऐसे लोग देख रहे हैं। इवन आई हैव रिटन दैट कम्युनिकेशन टू द पुलिस कमिश्नर ऑल्सो। बट सीधी बात है कि अगर ये पुलिस कमिश्नर हो या जितने भी जुडिशियल अथॉरिटी वाले हो, इनको समझ में क्यों नहीं आती ये बात। वाई दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर जॉब। और ये ऑटो वालों को इस तरीके से खुला गुंडापन करने के लिए छोड़ करके रखा हुआ है कि किसी भी लेडीज के साथ बदतमीजी करेंगे, कोई सीनियर सिटीजन है उसके साथ बदतमीजी करेंगे। दे वांट टू फेच द मनी।
है ना। तो ये चीजें यहाँ पर बंद होना चाहिए। देयर शुड बी सम फियर ऑफ द गवर्नमेंट और सम फियर ऑफ द अथॉरिटी। जो यहाँ पर जो ये अथॉरिटी वाले जितने भी पुलिस कमिश्नर्स हैं, ट्रैफिक के जो कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं, पता नहीं आंख बंद करके सो रहे हैं क्या कर रहे हैं दिस पीपल। तो अगर ये वीडियो वो लोग देख पा रहे हैं तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आई हैव रिटन योर मेल कम्युनिकेशन, व्हाई डोंट यू लर्न फ्रॉम अदर प्लेसेस। इंडिया इज अ कंट्री, वी आर वन, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि अगर आप कर्नाटका में रहते हो तो कर्नाटका दूसरा है, इट्स नम कर्नाटका, नम बेंगलुरु, इट्स माय आंध्रा, माय हैदराबाद, माय तमिलनाडु। दिस इज ऑल ब्लडी रबिश एंड नॉनसेंस थिंग। सो थिंक, अगर आप यहाँ से दिल्ली कमिट होते हैं, अगर आप यहाँ से पंजाब में जाते हैं, अगर आप यहाँ से मध्य प्रदेश में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, somebody treats you like that, how will you feel? Somebody misbehave with your parents, somebody misbehave with your wife and the sisters, how will you feel? तो ये चीज खत्म होना चाहिए। और ये जो एक बैरियर बना करके रखा हुआ है कि आप कर्नाटका में हो तो आप कन्नड़ा में बात करेंगे, अगर आप जब आपके पास में सवारी होती है तो आप हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जब आपके पास इश्यू होता है तो आप पुलिस स्टेशन जाकर के आप बाकी लोगों के साथ में कन्नड़ा बोलते हैं। यू सेज वी डोंट टॉक इन हिंदी, वी डोंट टॉक इन इंग्लिश, है ना। तो ये जो आपने फालतू का एक बेवकूफ बनाने का ये जो काम धंधा बना के रखा है वो सारे ऑटो वालों ने ये बंद होना चाहिए। और मेरा एक ही सीधा सा मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है यहाँ पर, जो कर्नाटका गवर्नमेंट है और जो बेंगलोर में जो भी पुलिस ऑफिसर्स है, जो डीसीपी और ये सब सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। खाली ड्रेस पहन के सड़क के ऊपर खड़े हो जाने से और लोगों को खाली लाइसेंस चेक करने से काम नहीं है बनता आपका। आपके लिए देयर शुड बी सम फियर इन द माइंड ऑफ दिस ऑटो वालास, जो कभी भी किसी के साथ में भी बदतमीजी करने लग जाते हैं, है ना। तो दिस इज माई अपील टू ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज और जितने भी ऑटो वालास हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल ऑटो वालास आर बैड, but majority of the time we have seen such incidences are happening and which is very very painful and frustrating. तो अगर इसको आपको कंट्रोल करना है तो there should be some fear in the mind of these people. Why not we feel that if अगर किसी के पेरेंट्स हैं तो it could be my parents also. तो जब तक आप उस इमोशन के साथ में काम नहीं करेंगे, जब तक आप उस भावना के साथ में आप काम नहीं करेंगे, you won't be able to live good life in any city of the India. राइट। सो ये वीडियो मेरे को लगा कि बनाने की जरूरत है और आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंसेस मैं आए दिन देखता हूँ। जब मैं बेंगलोर में कम्यूट करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। मैं किसी ऑटो वाले को बोलता हूँ कि आप इस बुजुर्ग आदमी के साथ में क्यों बदतमीजी कर रहे हो, आप इनके साथ में उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो। इवन ये लोग इतने बदतमीज होते हैं कई बार कि ये लोग हाथापाई पे उतर आते हैं। तो इतना देर, इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है एक ऑटो वाले की, है ना। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी यहाँ पर ऑटो यूनियन या है या नहीं है, उन लोगों को ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा एंड पनिश दिस पीपल जो लोग भी इस तरीके से काम करते हैं, है ना। और मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा कि कैंसिल देयर लाइसेंस थोड़े समय के लिए, कुछ ना कुछ। अगर आप लोगों को प्यार से नहीं सुधार सकते तो देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको कि वो देख करके कुछ सीख सकें और अपने आप को सुधार कर सकें और हम लोग एक अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सकें, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय अपील एंड द रिक्वेस्ट टू एवरीवन। एंड जो ऑटो वाले अच्छा काम कर रहे हैं और ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को यहाँ से मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर जाना था। मैं बहुत सारे ऑटो वाले से पूछा कितना लोगे, तो somebody is asking 200 rupees, 150 rupees. आई जस्ट आस्क देम सिंपल कि भाई किस बात का इतना, व्हाट इज द रेट फॉर दिस। तो बोला यहाँ कोई रेट नहीं चलता, हमारा जितना मन में आता लेते हैं। और उसी टाइम पे दूसरा ऑटो वाला आया एंड ही ड्रॉप्ड मी विदाउट आस्किंग एनीथिंग। जितना ऑटो में बना उतना लिया, 30 रुपीज उसने लिए। अब नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, 30 रुपीज एंड 200 रुपीज एंड 250 रुपीज एंड 150 रुपीज, कितना डिफरेंस है। तो किस बात के आप लोग इतना ज्यादा चार्ज करते हो, है ना। तो ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी और लोगों से बदतमीजी करना आप बंद करो। आपके यहाँ पर सिटी में कोई व्यक्ति पहली बार आता है, फर्स्ट टाइम अगर कम्यूट कर रहा है, स्टेशन पे है, उसको हेल्प करो, है ना। तो पहली चीज जो आप सिटी के बारे में ओपिनियन बनाते हैं वो इन्हीं लोगों से मिलकर के बनाते हैं कि हाउ पीपल बिहेव्स इन दिस सिटी। तो एक कल्चर को आप बिलोंग करते हैं, कर्नाटका का या कन्नडिगास का एक बहुत रिच कल्चर है, एक लीगेसी है, उसको फॉलो कीजिए एंड मेक श्योर दैट पीपल कम हियर एंड दे ऑलवेज कीप द गुड मेमोरीज along with them rather than having this kind of frustrating memories, painful memories from Bangalore or the Karnataka. Thank you so much.